हेलो प्रणाम नमस्कार पंचतत्व कल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रागुन तत्व टॉक्स माय ग्रीन तत्वा पॉडकास्ट. We all know the world is producing a record amount of single use plastic waste, mostly made from polymers created from fossil fuels. Despite global efforts to reduce plastic pollution and carbon emissions, according to a new report, and as it is अभी जो जुलाई का महीना चल रहा है वो प्लास्टिक फ्री जुलाई का महीना इसीलिए चल रहा है to raise the awareness. So the report says that additional plastic waste was created in last 2 years, which has increased more on the planet, and it was driven by demand for flexible packaging like films and sachets and disposable cutlery. In recent years, we know that government around the world have announced policies to reduce the volume of single-use plastic, banning products like single-use straws, disposable cutlery, food containers, cotton swabs, bags and balloons. Still, a lot needs to be done because अभी भी plastic pollution control में नहीं आया है. Well, in a bid to reduce the usage of plastic, today on Green Tattva Talks, we have a lady who works for the Audit Department for the Comptroller and Audit Journal of India and has opened a steel crockery bank. This unique bank lends citizens steel utensils for functions and occasions free of cost. सिर्फ यही नहीं, इनकी और भी बहुत सी इनिशिएटिव्स एंड मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं. तो उसको जानने के लिए टू नो मोर अबाउट हर क्रॉकरी बैंक एंड हर सस्टेनेबल जर्नी, लेट्स वेलकम Sameera Satija to Green Tattva Talks. Hello Sameera ji, how are you doing? Yeah, I'm fine. Thank you so much for giving me opportunity to speak on this platform. It's very interesting platform. In fact, I think this is second or third time I'm speaking for an podcast. It's Okay. very interesting, and the work you are doing, it's quite interesting. Okay, thank you very much. Thanks a lot. आपके initiatives and motivational work के आगे तो I'm just trying to raise awareness. But yes, I am in awe with all the work. So guys, before I move ahead, a bit about Sameera ji. Sameera Satija working as a citizen volunteer in the field of waste management, sustainable lifestyle and environmental for the past few years. In 2018, she initiated Crockery Bank for Everyone with the thought of providing a sustainable solution and reducing the litter of single-use plastic. इसके बारे में हम और भी ज्यादा बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं बताना जरूर चाहूंगी कि दिस इनिशिएटिव वाज यूजुअली वेलकम बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड सम पब्लिक फिगर्स लाइक गौतम गंभीर एंड सोनू सूद, ऑफ कोर्स motivated and achieved her for her work. The Ministry of Steel, Government of India has also felicitated this initiative under Sustainability Vision 2030. Not only this, Sameera is a trainer certified by Center for Science and Environment to conduct IEC, BCC activities related to solid waste management and sustainable lifestyle. इनके हैट में और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे फेदर्स हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं उन्हीं से. पर सबसे पहले समीरा जी, what moment made you start this crockery bank for everyone? Well, the story is quite long, but just cut it short. The story, basically for four reasons. It is bad for the environment. It is bad for the water bodies. It is bad for the stray animals. And most importantly, it is bad for the person who is consuming hot food into this kind of crockery. So Right. I was into plantation activities. I started my journey with plantation activities. And Okay. during one such plantation drive, I came across a landfill near to my place. I live in Gurgaon. It was Bandhwari. So it was a huge mountain of garbage. And that came as a shock to me. I never knew that the waste going from my home or my place, it's ending up with this landfill and becoming a mountain. Right. So when I saw that mountain, and then gradually I was going to that place because the plantation site was there, and I came, in contact with the villagers living around that landfill, and I got to know about their plight, their miseries, their diseases, they're suffering from the diseases because of the waste we are generating and we are rather throwing up in that landfill. So I started by making my home into zero waste home.
you know, Mm-hmm. I realized ki what can I do for this, to tackle this problem. Of course I cannot, I cannot mend the world, I cannot teach everyone to, mend their ways, but at least I can do my bit. So I started doing my homework, and kind of I made my home into zero waste homes. So it was possible. I realized that it is possible, making your entity, making your place, making whatever you are working, making your school, making your college, making your university zero waste is a possible thing. It can be done. So Yes. I started making people aware about this thing. I started teaching people how to make your homes into zero waste homes. Right. And in the meantime, we were a group of, some concerned citizens who were regularly visiting that landfill to Mm-hmm. just to check what exactly goes into that landfills, because we were on our end trying to reduce that waste which eventually ends up into the landfill. So we need to know what exactly goes into the landfills. So I realized that it's basically the single use items. Hmm. So here want to make this statement very specific. I'm not talking about single use plastic, I'm talking about single use items. Hmm. So whatever and whichever item is of single use is going into the landfill. But of Right. course, the plastic was, plastic was taking more of the landfills, because we use plastic, single use plastic on daily basis, every minute, every second, because it is used to consume food. So Right. by that virtue, the plastic generation is more. Right. So and simultaneously, when I used to see the bhandaras happening in Hmm. my neighborhood, you also see, we live in North India, and we see this bhandara thing is very normal. It's very very normal and very common. So Mm-hmm. I used to see people feeding poor people or the roadside passers by and serving them into this styrofoam crockery. And once the bhandara or that event is happened, the single use crockery or the single use items were just lying over there, not just lying, rather flying, rather choking the city. In True. fact, the situation right now in Delhi NCR, at the everywhere it's waterlogged. It's mainly because of all the drains are choked with the single-use plastic. True. True. So so I used to see that these flimsy styrofoam and the plastic crockeries just flying and choking the drains, main holes, water bodies. This is one of the reasons. The second reason, once I myself saw a cow was eating the styrofoam plate because she was searching for the food. She Right. was just choking. I was True. other side of on the road, and she was literally choking. So that was another reason, which make me I have to do something. And the third, the most important, was to, I the more I learn about single-use plastic or the styrofoam, I came to know that styrofoam is a brand name, and Mm. it is made of styrene. It is made of Okay. styrene. Mm-hmm. Styrene is a cancerous chemical. True. If you Google styrene, styrene is a cancerous chemical. So if you serve hot food into anything made of styrene, the cancerous, those chemicals or the toxics immediately goes into your body with the food. You know. So then I realized, कि what are we doing in, just to earning our punya. ऐसा ही कहा जाता है ना कि किसी को खाना खिला के आप पुण्य कमा रहे हैं, जी है जी ना? जी। To just earn your punya, you are serving that person with the cancerous, chemicals. उसको आप खाना तो खिला रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ उसको कैंसर सेल्स भी सर्व कर रहे हैं ना, वो स्टाइरोफॉर्म की प्लेट में खाना खिला के. बिल्कुल। तो तो वो बात मुझे बहुत शॉकिंग लगी कि ये बेचारा जो अपनी भूख की वजह से, जिसकी वजह से हम पुण्य कमा रहे हैं, उस बेचारे को पता भी नहीं है कि उसकी बॉडी में कैंसर सेल्स जा रहे हैं. आज की भूख तो हम उसकी मिटा रहे हैं, बट आगे आने वाले टाइम में जो बीमारी उसको हम सौंप रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी या स्किन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये सब स्टाइरीन की वजह से होती है. तो उसको तो मालूम भी नहीं है कि वो उसके उस बीमारी को भी खा रहा है साथ में. सो दीज आर द मेन. तो उसके बाद जब मुझे लगा कि लोगों को ये बात समझानी चाहिए, आई यूज टू डू दैट. आई वॉज वेरी पर्टिकुलर. जब मुझे लगता था कि आसपास कहीं भंडारा होता है या पता चलता था, आई यूज टू गो टू दैट पर्सन जो भी ऑर्गेनाइज होते थे. आई यूज टू टेल देम कि लिसन, दिस इज दिस, इट इज बैड फॉर दिस, इट इज बैड फॉर दिस, इट इज बैड फॉर दिस, यू प्लीज डोंट यूज दिस थिंग. तो जो रेगुलर मेरे पास रिप्लाई आता था, वेरी कॉमन रिप्लाई, कि फिर यूज क्या करें.
which was a valid point, हम्म। and decided to go into the market to search for the pattals, leaf wale Alright, pattal. जी। कि चलो पत्तल ढूंढते हैं, पत्तल का हम लोग इनको ऑल्टरनेटिव दे देंगे। लेकिन जब मैं मार्केट में गई तो कोई भी पत्तल अवेलेबल नहीं थे। पूरे जो पत्तल की भी दुकानें थी पुरानी सदर वदर में, वो सब में प्लास्टिक ने उसको कैप्चर कर लिया था। So, so that was the point which shook me and which actually pushed me to do my bit and to think beyond that pattal and thing. And then I decided to do this thing because I belong to Sikh community. I follow Gurdwara and I go to Gurdwaras. So I have seen, in Gurdwaras we have seen food is served into stainless steel crockery. So that idea came to me from that practice. Why not I start with the collection of stainless steel crockery and just give to people who want to use this crockery, and people who are like me and who don't want to use any single use item, but they are forced to use because there is no alternative available in the market. So I decided to do this thing for them. It was a very, very humble start. I just wanted to do it. And I, as that, and with a simple thought, I started this initiative on exactly on 22nd June 2018, when it was Nirjala Ekadashi. Nirjala Ekadashi जब हम ठंडा पानी पिलाते हैं, so I thought कि अगर निर्जला एकादशी पे इतने सारे glasses use हो गए तो what is the point of me, मैं सोच रही हूँ let's just do it. तो मैंने निर्जला एकादशी पे शुरू किया। हम लोगों ने ग्लासेस खरीदे, मतलब मैंने, और 4-5 ग्रुप्स में हमने बांट दिए। 30 ग्लासेस हमने बांटे 4-5 ग्रुप्स में। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब मैंने उनसे रिपोर्ट ली कि कैसा रहा, तो हम लोग अराउंड 8000 सिंगल यूज प्लास्टिक बचा चुके थे। बाय यूजिंग दोज ओनली 100 ग्लासेस, बिकॉज हमने 30-30 हर टीम में बांट दिए थे। सो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग कि हम एक दिन में अगर 8000 बचा सकते हैं, सो इमेजिन द उस कैलकुलेशन जो भी है कितना उसका वो होगा। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन as the word spread, people start calling me कि हमारे घर में यहाँ पे ऐसे फंक्शन है या ये है, ऐसे छोटा सा घर में ये हमको क्रॉकरी चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैंने शुरू में तो बहुत कम क्रॉकरी लिया था, बिकॉज आई डिडंट नो कि ये कैसा वर्क करेगा। इट वाज अ वेरी हम्बल स्टार्ट कि कुछ बर्तन ले लेते हैं, जिसको चाहिए होगा वो ले जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, every day I used to run to the market to buy more crockery. For the initial 1 or 2, 3 months, I regularly go to the market, because as soon as I get a call कि we need a crockery, I never refuse anyone कि मेरे पास अभी और crockery नहीं है. I don't want to refuse them. I thought it's very nice. Please, if you actually are ready to make them change, let's just make it, है ना? So I didn't bother about the money कि कितना पैसा लग रहा है ये वो. So I just keep on buying crockery, and that's how it started. Yeah, this is the story how it started. Yeah. Okay, आपकी स्टोरी सुनकर सबसे पहले तो मुझे एक कोट ध्यान में आता है by Margaret Mead says, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that has ever, and I'm sure आप बहुत बड़ा example है इस चीज का. I'll just once again repeat for my listeners, guys, that Crockery Bank for Everyone, they have their Insta page also, which is by the same name, crockery_bank_for_everyone, which you can check, and you can contact Dr. Sameera ji for requirements of your stainless steel utensils if you are having social or religious gatherings, if you are in and around Delhi, NCR, Gurgaon area. And certainly, as she mentioned, now we have teams all across the nation. Now we have 39 teams all across the nation in different cities. Yes. So people from all over India can just drop message, and I'll connect them with the nearest team. So in almost most of the cities now we have a team working on the same format. So आपने जैसे सुना कि उनकी 39 teams all over India में associated हैं, they are putting their collective efforts. जैसे उन्होंने बताया कि एक दिन में उन्होंने इतना सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम को रिड्यूस किया, तो आई एम श्योर सिर्फ एक सोच की बात है, वो एफर्ट, वो इनिशिएटिव लेने की बात है. एंड सर्टनली हम सभी जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आर वेरी सेफ टू कुक इन ऑल्सो एंड टू ईट ऑल्सो. आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे आपके सिख एसोसिएशन का नहीं पता था. लेकिन मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव, तो आई ऑलवेज गिव देम द एग्जांपल ऑफ गुरुद्वारा. मैंने कहा जस्ट सी होल डे किस तरह से सेवा चल रही है वहां, तो कोई स्टाइरोफोम या सिंगल यूज या डिस्पोजेबल प्लास्टिक यूज नहीं कर रहा है, तो व्हाई कांट पीपल डू. एंड आज ही शाम की बात
बात है, इको ट्रू फाउंडेशन, दे वर्क इन दिल्ली नॉर्थ रोहिणी के साइड पर, उन्होंने एक वीडियो रील में शेयर किया। वही किसी ने लंगर, अभी कावड़ चल रहे हैं इन नॉर्थ, सो कावड़ के बीच में दे आर गिविंग फूड एंड ऑफ कोर्स ऑल द एमिनिटीज, एंड कावड़ शिविरों के बाहर सिर्फ और सिर्फ कचरा इकट्ठा है, जस्ट बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक में वो खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। पानी, चाय, फूड, एवरीथिंग इज बीइंग कंज्यूम्ड। दैट्स गुड कि आप सेवा कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, बट एट द एंड उसके पीछे क्या छूट रहा है, आई थिंक वो भी हमारे को देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज स्टील, आई थिंक मुझे जो अच्छे से याद है, मेरे बचपन में इतना ये हमारे प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीजें नहीं थी, घर में भी पार्टी होती थी, कुछ भी होता तो स्टील वाज द ओनली थिंग। मतलब धीरे 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 ये चेंजेस आए हैं, एंड स्टील इज ड्यूरेबल, सस्टेनेबल, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द ओरिजिनल फ्लेवर। जैसे आपने कहा कि स्टाइरोफोम तो कैंसरस सब्सटेंसेस को भी हमारे अंदर डाल रहा है। तो गाइस, सिर्फ एक लुकआउट की बात है, थोड़े से एफर्ट देने की बात है। पीपल लाइक समीरा आर अवेलेबल ओवर हियर हु आर रनिंग क्रॉकरी बैंक्स फॉर एवरीवन। तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, अगर आपके यहाँ कोई जगराता है, लंगर है, कीर्तन है, एनी गेट टुगेदर इज देयर, सो गाइस प्लीज कांटेक्ट देम। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आर मच मच better for you as well as for the environment. And the bonus point is that it is free. You don't have to pay anything. Absolutely I think we right. forget to mention that. Yes, yes. Free, free. It's free of toxins, it's free of garbage, it's free of any cost. So you Right. are not just saving the money, you are saving the environment. It's a win-win situation. I mean, Absolutely. I don't think anything can be beautiful than this, that you are saving the money as well as the environment. Completely agree, completely agree. Well, Samira जी, मैंने शुरुआत में आपका जिक्र किया था कि you are already a government job. तो मुझे ये बताइए कि how do you find time with your busy schedules of a government job for all these wonderful initiatives? How do you find time for the thing you are passionate for? It's very That's a simple. good line. It's That's very a good simple. line. If you have the passion, you live for that passion. Rest of the things don't matter. You know, you are completely feeling motivated, completely feeling charged up because you are working for the cause you are passionate for. You don't feel bored, you don't feel tired. Rather, I feel tired when I'm doing something else, which is, not I'm not very passionate of. But this is my passion. I feel it every day. With every single use plastic I save, I feel more motivated, I feel more inspired, I feel more charged up. Kudos, kudos, kudos to you. So, guys, Samira ji certainly खुद भी सस्टेनेबल एंड केमिकल फ्री लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं फॉर लास्ट 5 to 6 years. शी हैज बीन मेकिंग, यूजिंग, टीचिंग, प्रमोटिंग bioenzyme, which is a toxin free multi-purpose household product. She has also been elected as Haryana State President Bioenzyme Council under Wiki to mentor and support other women in this domain who want to scale it up commercially. So wow, you're doing a lot to spread this awareness of how people can switch to a sustainable lifestyle without investing much. Like लोगों को बहुत इस तरह से लगता है ना कि अच्छा इको फ्रेंडली है, कुछ तो भी अलग से करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, तो आपने जिस तरह से, मैंने आपके बारे में जो ये पढ़ा कि केमिकल फ्री लाइफस्टाइल, उसके अलावा what other things you have adopted in your sustainable lifestyle and how has been the response of people? Mainly मैं ये जानना चाहूंगी कि जब से आप शुरू हुई हैं, आई एम श्योर बिकॉज ये मेरे साथ भी होता है कि इको फ्रेंडली कॉजेज के लिए बहुत जल्दी से लोग एग्री नहीं करते हैं, उनको लगता है एक टिश्यू पेपर या एक चम्मच से क्या हो जाएगा. So how, like what all activities more you have been doing and teaching, and how was the response of people? Well, I am not bothered about the response of the people. This is my life. These are my karmas. I am just bothered about my karmas. I just want to make sure that what I am doing for the earth, what I'm doing for my nation, what I'm doing for the future of my own children. I'm not bothered about anyone. They are not bothered about their children. They can say anything. I'm bothered about my children, their future, their clean air, their clean water. So I'm doing my karmas. So it's just as simple as that. I never say कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ या मैं बहुत बड़ी सेवा का काम कर रही हूँ. No. I'm very selfish. I'm doing it for my children. Simple as that. Right. मैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और अपने बच्चों से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सिर्फ 2 बच्चों के लिए कर रही हूँ. अपने बच्चों से मेरा मतलब ये जो पूरी जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, मैं उनके लिए कर रही हूँ.
यू नो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सिर्फ 2 बच्चों के लिए कर रही हूँ, मेरा मतलब है कि वो पूरे सब बच्चे जो उनके एज ग्रुप के हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन है। सो अगर आप एक्चुअली फील करते हैं कि ये सब कुछ हम अपने बच्चों के लिए करें और उसके बाद भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, देन इट्स योर कॉल टू टेक, इट्स नॉट माई कॉल। मैं आप क्या सोचते हैं मैं उसके लिए बॉदर नहीं हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, आई एम जस्ट हैप्पी विद दैट। हम वही खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो पहनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम कभी किसी और को देख के तो कपड़ा नहीं पहनते हैं कि उसने गंदा पहने तो हम भी गंदा पहने, या वो अच्छा खाना नहीं खा रहा तो हम भी अच्छा नहीं। हम हमेशा वो करते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। और राइट। इस काम को, और एंड ऑफ द डे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ना दे स्टार्ट आर्ग्यूमेंटिंग विद यू, है ना। बिल्कुल वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। बिल्कुल। सो आर्ग्यूमेंट का जवाब तो शायद उनके पास भी है, शायद मेरे पास भी है। बट एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आई ऑलवेज से कि वट एवर यू से, बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द नाइट व्हेन यू ले ऑन योर बेड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, यू विल से कि जो भी हो मैं गलत नहीं कर रही। आप राइट। कितना भी मुझसे आर्गुमेंट कर ले, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। ट्रू ये तो ट्रू। आपको मानना ही पड़ेगा, है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल गलत तो बिल्कुल। नहीं कर रही हूँ। अब उसका इम्पैक्ट कितना होगा, कितने सालों में होगा, वो उस पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं गलत कर रही हूँ इस पे हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। कंप्लीटली। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना। नहीं नहीं, सो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी एक्चुअली लोगों के बारे में नहीं बॉदर किया, कभी भी नहीं। इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश की। लेकिन हम्म। मुझे लगता है अगर मैं इसकी सक्सेस स्टोरी उस तरह से बताऊं कि लोगों के माइंडसेट में कितना चेंज हुआ है, तो हम्म। 95% लोगों ने हमेशा इनकरेज किया है। ओके इट ग्रेट। इज ओनली 4 to 5% जिन लोगों ने थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश की। लेकिन क्या 95% के सामने ये 5% मैटर करते हैं? राइट। मुझे तो नहीं लगता कि वो मैटर करते हैं मेरे लिए। मैं तो 95% लोगों को देख रही हूँ और मैं कर भी उनके लिए रही हूँ। एट द वेरी बिगनिंग मैंने ये बोला है कि उन लोगों के लिए जो मुझ जैसे हैं और जो प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहते थे, मुझे उनके लिए कुछ करना था। बाकी राइट। लोग साथ में जुड़ रहे हैं, माइंडसेट बदल रहा है, ये जर्नी पे चल रहे हैं, वेल एंड गुड, सभी लोग वेलकम है। लेकिन मैं सिर्फ उन 95% लोगों को देख रही हूँ। मैं 5% लोगों को नहीं देख रही। आई ट्राई टू एजुकेट देम, आई ट्राई टू अवेयर देम, एंड एंड ऑफ द डे दे ऑल्सो नो कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम एब्सोल्युटली। उनके भी बच्चों के फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। नाउ कमिंग बिल्कुल। टू द सेकंड पॉइंट, और मैं क्या करती हूँ अपनी जिंदगी में। सो बहुत ही रेगुलर चीजें जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप्स, और ये मैं रेगुलरली करती हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग, आई ऑलवेज कैरी स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ, एंड इसके साथ एक ब्रश भी आता है, सो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। ये मेरे बैग में हमेशा रहता है। ये हार्डली 5 ग्राम का है। सो अगर हम बैग में इतनी सब चीजें भारी कैरी कर सकते हैं, ये स्ट्रॉ भी कैरी आराम से हो सकता है। इसका कोई वेट ही नहीं है, लिटरली इट हैज नो वेट। ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा अपना हैंकरचीफ साथ में लेके चलती हूँ। एक स्पोर्क होता है, दैट इज स्पून कम फोर्क। राइट। इसमें फोर्क का भी काम करता है, स्पून का भी काम करता है। तो स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ का एक पाउच है, उसके बीच में ये फोर्क भी रहता है। ये दोनों चीजें मेरे साथ हमेशा चलती हैं। तो मुझे अगर कहीं बाहर खाना खाना है और वो मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक दे रहा है या सिंगल यूज स्ट्रॉ दे रहा है, मेरे बैग में ये हमेशा होता है। उसके अलावा वाटर बॉटल तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में कभी छोड़ी ही नहीं है। वाटर बॉटल, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 5 मिनट के डिस्टेंस पे भी जा रही हूँ तो मेरी वाटर बॉटल हमेशा साथ होती है। जो लोग मेरे साथ मूव करते हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स या और एक्सटेंडेड फैमिली, सबको पता है कि कहीं पानी मिले ना मिले, मेरे बैग में पानी जरूर मिलेगा। सो आई ऑलवेज कैरी माई वाटर बॉटल। क्लॉथ नेपकिन हमेशा मेरे साथ होता है, और मेरे बच्चों को भी आदत है क्लॉथ नेपकिन लेके चलने की, ये साथ में रहता है। उसके अलावा अगर मेंस्ट्रुअल उसकी बात करें, जो कि एक अनदर टॉपिक है जिसपे हमें जरूर बात करनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन को लेके। सो आई यूज दिस मेंस्ट्रुअल कप, क्या? ये मैं यूज करती हूँ। उसके अलावा बायोएंजाइम्स तो आपको आपने बताया ही है। सो बायोएंजाइम यूज करने से मेरे घर से जितने भी केमिकल क्लीनर्स हैं, पिछले 5-6 सालों से मैं कोई भी केमिकल क्लीनर घर में यूज नहीं कर रही हूँ। इट्स ओनली बायोएंजाइम। और ये बहुत ही आई मीन एकदम एकदम परफेक्ट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे कोई केमिकल क्लीनर यूज करना है। ऑल्दो राइट। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग पहले दिन से ये जर्नी को 100% अचीव कर सकते हैं। आई ऑलवेज से कि 50% का हम वो लेके चलते हैं। 50% आप
चेंज करना शुरू करें, या 10% या 20% या 30% भी शुरू करें, कोई भी स्टेप छोटा नहीं है. Sure. इन द टर्म्स ऑफ 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम उन टर्म्स में कैलकुलेशन करें तो आप ये सोचें कि एक स्ट्रॉ को हम बचा रहे हैं और वही 140 करोड़ लोग एक स्ट्रॉ को बचा रहे हैं, तो कहाँ तो एक स्ट्रॉ है और कहाँ वो 140 करोड़ स्ट्रॉ है. Absolutely, यू नो, absolutely. तो हम लोग तो अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है. सो अगर हम इंडिया के लोग ही अपने आप को बदलें तो आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा हो जाएगा, True, यू नो, टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन. सो true. ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये मैं डेली करती हूँ. सो इसलिए मुझे मुझे बड़े नहीं लगते हैं कि कोई बड़े स्टेप्स हैं. और इनको करने से ही जब मैं ये देखती हूँ कि मेरे घर में कितना वेस्ट जनरेट होता है, तो मुझे एक्चुअली ये फील होता है कि ये वही वेस्ट जनरेट हो रहा है जिसका मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई हूँ, यू नो, या जिसका मेरे पास अभी कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. अब बिस्किट के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, बच्चों के लिए आते हैं, वो मैं नहीं उनको कुछ कर सकती. तो आई ट्राई टू सेग्रीगेट देम एंड सेंड इट टू द रिसाइकलर. बस लैंडफिल में नहीं जाने चाहिए, दैट आई मेक श्योर. दैट्स रियली वंडरफुल. और आपने जब अभी अपनी ये जो जर्नी में बात कही ना कि आप अपने लिए करती हैं, इससे मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आता है बाय एडवर्ड एवरेट हिल. आई एम ओनली वन, बट आई एम वन. I cannot do everything, but I can do something. And I will not let what I cannot do interfere with what I can do. And certainly, जिस तरह से आपने कहा कि जो मैं कर सकती हूँ वो एफर्ट्स तो मैं करूँ. मुझे ये नहीं सोचना है कि सामने वाला मुझे डिस्करेज कर रहा है या सामने वाला मेरे से एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है. मैं अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, अपने आसपास के लिए वो कर रही हूँ. एंड यू शुड बी प्राउड. एंड ऑफ कोर्स आप इतनी अच्छे से अवेयरनेस इस बारे में स्प्रेड कर रही हैं. यू हैव ऑलवेज बीन कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द इको फ्रेंडली लिविंग एंड सस्टेनेबल चॉइसेस. जिस तरह से आपने अपनी डेली लाइफ की चीजें बताई, ये तो आई थिंक आजकल हर एक की पर्स या हर एक के बैग में ना बेसिक हो जाना चाहिए. मेरे को बहुत टाइम से लगता है कि बॉटल, एक रियूजेबल बैग, स्ट्रॉ, ये सब कैरी करना इतना मुश्किल नहीं है. जहां हम फैंसी पर्सेस लोग कैरी कर सकते हैं, जहां भारी भारी मोबाइल एंड गैजेट्स कैरी कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट दीज फ्यू थिंग्स जो कपड़े का रुमाल है, कपड़े की बैग है, स्ट्रॉ है, ये चीजें हम क्यों नहीं कर सकते? इतना मुश्किल नहीं होता है. सो गाइज, ग्रेट टिप्स यू हैव शेयर्ड. एंड अगर आप और टिप्स समीरा जी से चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो समीरा जी का इंस्टाग्राम हैंडल विच इज सस्टेनेबिलिटी कोच अंडरस्कोर समीरा. मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि उनका जो क्रॉकरी बैंक है उसका भी इंस्टा हैंडल है क्रॉकरी बैंक फॉर एवरीवन. सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हर एंड सी व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज शी हैज बीन इन्वॉल्वड विद. ओके समीरा जी, अभी आपके इंस्टा हैंडल में एक वर्ड आया, सस्टेनेबिलिटी कोच. So what is the role of a sustainability coach or a sustainability consultant? Like what all is covered in that? I would like to put it like this way, that it's a complete package of awareness. You know, sustainability consultant provides a complete package of awareness, starting from sharing the facts about the climate reality and global warming, and then the factors contributing to that global warming or the climate reality, and the responsibility of human beings as an individual, as a corporate, as a business owner, and as a producer. And then sharing them sharing them the rules and laws of the land, because we have rules and laws of also the way we have SMW rules 2016, solid waste management rules 2016. So hardly anyone knows about that. But once we know about that, then when we get realized that if we are not segregating our waste, we are doing a crime by not, following that rule or the law made by the Supreme Court of India, NGT. NGT is a green tribunal, so it's equivalent to Supreme Court. So, and then, so telling them the rules and laws of the land, and then most importantly, telling them the practical and doable actions to start their sustainable journey, and most importantly, holding their hand and supporting them during that journey. That's the role of a sustainability coach. It's not just the awareness, rather to tell them what are the alternatives available, what are the right way to start your journey, what are the small steps you can take, and then keep holding their hand and supporting them throughout the journey. Because sometimes there is a conflict
आई गेट मेनी मैसेजेस कि ये पेपर का बैग है और ये बैग है, इसमें से दोनों में से सस्टेनेबल कौन सा है? Mhm. you know People think ki the paper bag is sustainable. No, paper So is not. it so again, so we have to tell them that paper bag is not sustainable. It might be eco-friendly, but it is not sustainable. So there is a huge difference between the term eco-friendly and being sustainable. Right. Although we use those words interchangeably, we suppose that one thing which is eco-friendly is sustainable. No, it is not. So something may be eco-friendly, but it may not be sustainable. So Right. that kind of awareness they should know, and that's the role of a sustainability coach. Although I have extended my role, my duties, and I also added one more duty into my profile to create green entrepreneurs and to make them, provide them livelihood through green jobs or the green activities. Right. So my vision and my motto is to create green economy and the green businesses. That's what we have to do, and collectively we have to just make the shift from the things we are doing to the greener options of those things. That's as simple as that. Right. I think the great challenge of the 21st century is to raise people everywhere to a decent standard of living while preserving as much of the rest of the life as possible, and tell them about all the eco-friendly and sustainable choices and options and alternatives that are available to them. Because ऐसा नहीं है चीजें कुछ नहीं है. I think just अवेयरनेस की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. थोड़ा सा दिमाग को कि हम अगर टिश्यू पेपर उठा रहे हैं तो उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं इसको कपड़े से रिप्लेस कर सकता हूँ. मैं जब स्ट्रॉ या कॉफी पी रही हूँ तो व्हाई कांट वी कैरी अवर फोल्डेबल ग्लासेस. इतना मुश्किल काम नहीं होता है, पहले भी होता था. इट्स जस्ट कि ईज ऑफ यूज एंड थ्रो अवे करने की फैसिलिटी की वजह से हम लोगों ने प्लास्टिक को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी है. राइट. आई थिंक अभी तक हमने इसको टैबू नहीं बनाया है. ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको टैबू बनाएं. मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फैशन स्टेटमेंट आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स को या जितने भी सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत ज्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं, उनको ये करना चाहिए कि अगर कोई सिंगल यूज आइटम यूज हो रहा है तो उसको जस्ट थम्स डाउन करें, और अगर कोई अपना बैग यूज कर रहा है, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ यूज कर रहा है, then make it a fashion statement. Just make it a in thing. Just make it a bold statement. Yes, I am very proud to carry my stainless steel straw. So I think it's the need of the hour, and we should make those things a taboo, which are not eco-friendly and which are not sustainable. हमने वो करना शुरू नहीं किया है. अभी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, है ना. हम उनके इन्फ्लुएंस होने की वजह से मैं देख रही हूँ कि यंग गर्ल्स इतना ज्यादा मेकअप कर रही हैं आजकल. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर लाइफस्टाइल, जो भी उनके डिसीजंस है, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करी. बट माय पॉइंट इज कि अगर ऐसा करने से हम उनमें ये चीज डाल पा रहे हैं, तो ऐसी इन्फ्लुएंसिंग से हम उनमें बेटर हैबिट्स भी तो डाल सकते हैं. वही इन्फ्लुएंसर अगर ये बताएं कि ये मेकअप प्रोडक्ट्स आप जो यूज कर रहे हैं, इनकी रिटर्न जर्नी ये है, ये यहाँ पे आप इसके खाली कंटेनर वापस दे सकते हैं, ये ब्रांड जो है ये ज्यादा सस्टेनेबल है बिकॉज ये इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एंड ये ब्रांड जो है अपने खाली कंटेनर्स को, एम्प्टी कंटेनर्स को टेक बैक भी करता है. सो कितने लोग में से जानते हैं, हम डेली बेसिस पे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और बच्चे यूज कर रहे हैं और उसको थ्रो कर रहे हैं रोज डेली बेसिस पे. बट कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि राइट काइंड ऑफ अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप ये ब्रांड यूज करें बिकॉज इसका टेक बैक है. या उन लोगों में से कितनों ने ये स्टेप लिया है कि हम जाके ब्रांड ओनर से बात करें. मैं अभी एक बार एम्बियंस मॉल में गई थी, वहां पे बहुत बड़ा दिस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, और उनके पास उस स्टोर में छोटे छोटे बहुत सारे स्टैंड है डिफरेंट ब्रांड्स के. एंड टू माय शॉक कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था जो कि अपने खाली कंटेनर्स टेक बैक कर रहा हो, जबकि वो प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं. सो प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर ईपीआर अप्लाई होता है. ईपीआर जो हमारा रूल है वो अप्लाई होता है, जो हमारा लॉ है. फिर देखें कि कितनी आसानी से वो ब्रांड फैशन द ब्यूटी ब्रांड्स अपने आप को अलग किए हुए हैं, और उनको मालूम भी नहीं है कि हमें ये करना है, उनको कुछ अवेयरनेस ही नहीं है.
और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स और नए आते ही जा रहे हैं, वो भी एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि एवरी डे न्यू ब्रांड पॉप्स अप टू लेट यू नो कि ओके एक और प्लास्टिक बॉटल आपके घर में आने के लिए तैयार है। हाँ। सो या एब्सोल्युटली राइट। इससे मुझे एक छोटी-सी चीज़ याद आई, ऑल्दो मुझे बताते हुए थोड़ा-सा और लग रहा है। रिसेंटली कज़िन विजिटेड फ्रॉम यूएस एंड वो मेरे लिए एक लेदर का बैग एंड मेकअप किट लेकर आई एंड आई जस्ट सेड कि मैंने कहा ग्लैड यू बॉट बट यू वेरी वेल नो कि मैं लास्ट 2-3 साल से हैव बीन इको ब्लॉगिंग एंड इको पॉडकास्टिंग, तो आप थोड़ा सा तो सोचो बिकॉज यू नो आई यूज द कॉटन बैग्स कलम। तो कहते एक बैग से क्या हो जाएगा, मैंने कहा यही तो मेन सोच है कि एक बैग से क्या हो जाएगा। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी मैटर है, आई एम नॉट हैप्पी कैरिंग अ लेदर बैग इफ आई हैव ऑलरेडी स्विच्ड टू ऑल द क्लॉथ बैग्स हैप्पीली। तो मैंने कहा आपके लिए एक बैग है लेकिन मेरे लिए वो एक सोच है, मेरे लिए वो मेरा पैशन है जो मैं सबको बता रही हूँ। मैंने कहा मैं खुशी नहीं हूँ उसको यूज करके। मैंने कहा नो, आपके लिए वो अपनी आइडेंटिटी है, आपके लिए वो प्रिंसिपल है ट्रू ना? ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। यू डिड अ वेरी राइट थिंग। नॉर्मली क्या होता है कि हम रिश्तों की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं और कई बार नहीं कुछ बात कह पाते, बट यू डिड अ वेरी राइट थिंग। लेट्स बी वेरी वोकल अबाउट दीज थिंग्स। मैं भी ऐसी बातें बहुत बोलती हूँ और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब मुझे बोलना होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे मालूम है कि वो इंसान जब रात को बेड पे जाके लेटेगा, सोएगा, तो वो ये तो जरूर कहेगा कि कर तो ठीक ही रहे हैं ये लोग, गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। राइट। नहीं ऑफ कोर्स थोड़ा सा बुरा लगा बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। मैंने कहा यू नो वेरी वेल, फैमिली में हो, तुम्हें मेरा वर्क पता है, यू हैव अप्रिशिएटेड माय वर्क एंड इंस्टेड स्टिल यू हैव बॉट अ लेदर बैग। मैंने कहा मतलब थैंक्स बट प्लीज इसे किसी और को दे दो। आई वुड बी मोर हैप्पी अगर आप नहीं लाओ, चॉकलेट्स ले आओ, बहुत है मेरे लिए। राइट राइट। या ओके, सो अभी जब ये बात कर रहे हैं कि एट टाइम्स सामने वाले को बुरा लग सकता है, एट टाइम्स हम कई बार ये भी सोचते हैं कि ओके क्या ये चीज मुझे सिर्फ इसलिए ले लेनी चाहिए बिकॉज सामने वाले को पसंद है। तो आई थिंक अगर आप सस्टेनेबल चॉइसेस में बिलीव करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाना पड़ेगा। लाइक पोप जॉन पॉल वंस सेड दैट मॉडर्न सोसाइटी विल फाइंड नो सॉल्यूशन टू द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम अनलेस इट टेक्स अ सीरियस लुक एट इट्स लाइफस्टाइल। और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में टू गिव इट अ सीरियस थॉट। सिर्फ पेपर्स पे नहीं, सिर्फ डिबेट्स में नहीं, सिर्फ वर्कशॉप्स में नहीं, आपको अपने माइंडसेट में, आपको अपने डेली लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। अभी मार्च 23 की ही एक रीसेंट न्यूज थी विच सेज दैट अ ग्रोइंग प्लास्टिक स्मॉग now estimated to be over 170 trillion plastic particles is choking our oceans, and the research paper stated that urgent solutions are required. And certainly we must think wisely and change our habits to protect the earth from plastic pollution. And there is a mass awareness about the plastic menace which needs to be done. जस्ट ये कह देने से कि प्लास्टिक फ्री जुलाई है, सिर्फ जुलाई ही नहीं गाइस, पूरे साल भर के लिए आपको प्लास्टिक फ्री ऑप्शंस को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि किचन है ओके टिश्यू पेपर से पोंछ दिया हो गया, कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, उसको सिर्फ धोने का ही कष्ट उठाना है और कपड़े तो रोज धोते ही हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील कि हम उस कपड़े को धो नहीं सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ को पी के फेंकना जितना आसान है, उस स्ट्रॉ को धोना भी उतना ही आसान है। इट्स नॉट दैट मुश्किल जितना हम सोचते हैं। सो गाइज glad Sameera ji ki as a sustainable consultant you are spreading this awareness, and if I'm not wrong आज जब आपसे दिन में बात हुई थी तो you are already conducting a lot of workshops also, and आप associated है एक non-profit entity अस्तित्व से as a of course sustainability consultant which is meant to promote repurposing and upcycling of old clothes and leftover fabric। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, अस्तित्व ट्रस्ट के बारे में प्लीज। Yeah, so when I initiated this Crockery Bank for Everyone, and I think it was around 2020. In 2020, I had thought that now this plastic problem has, I mean, my part has done. I have initiated this thing and it has become acceptable. It has become accepted initiative. Now people are accepting it, and I was working on that thing. I mean, I didn't have to put more efforts into that thing because it's now working on a auto mode thing. Now people come, take the crockery, use and drop it back. It's working very fine. So I thought of doing the next step. What is the next step? And as I told you, I used to go to the landfills to check what exactly goes into the landfills. So after plastic, single-use plastic, the fabric and the apparel is the second largest waste going into the landfills. It will be very surprising to you, but it is truth
that the second largest waste going into the landfill is the apparel and the fabric waste, Okay. especially in the urban landfills. Line. Just because of the fast fashion. Right. तो वही है कि आप रोज पहन रहे हैं, रोज अपना फेंक रहे हैं. इवन इफ यू गिव टू योर हाउस हेल्प्स और द अदर जो भी आपके असिस्टेंट्स हैं घर में जो भी हेल्प करते हैं, बट एंड जर्नी इज लैंडफिल ओनली. आप उन लोगों को भी दे दें, बट जितना आप उनको देंगे उनके लिए भी वैल्यू कम है, उनके लिए भी इट्स यूज एंड थ्रो वाला सीन है. थोड़े टाइम के लिए चलेगा. एब्सोल्युटली राइट. अगेन तो वही सिंगल यूज हो गया, सो वो यूज हो रहा था. तो आई थॉट ऑफ कि इस पे भी अभी तो कुछ तो काम करना पड़ेगा. सो ऑल्दो फैब्रिक पे और अपैरल वाले इंडस्ट्री में काम करना पूरी तरह से उसका सोल्यूशन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है या जो इकोसिस्टम बना हुआ है फैब्रिक के अराउंड, तो उसमें कुछ इतने सारे गैप्स हैं कि वो उसको मैं नहीं कर पा रही हूँ. बट देन थॉट ऑफ कि मैं क्या कर सकती हूँ. सो आई थॉट ऑफ टैपिंग द श्रेडिंग्स एंड द fabric leftover and come into the landfills. So mostly shredding and the leftover fabric generated at the boutiques and the tailoring units end up in the landfill. Right. You will see whenever you go to any boutique nearby your house, you will see a big bags full of shredding. True. बड़े बड़े कतरन, इतने बड़े बड़े कतरन कि वो पूरे 4-5 बैग उनकी एवरी वीक निकल रहे हैं एंड सबके सब लैंडफिल में जा रहे हैं. ना ये वेस्ट को टैकल करना या टैप करना मेरे लिए इजी था, बिकॉज इट्स अ प्री कंज्यूमर वेस्ट, है ना, और मुझे उसकी जनरेशन पता है कि यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं. So I thought of tapping the pre-consumer this fabric waste, so fabric shredding. So we collect and the cut long story short, we collect the shreddings and the leftover fabric from the boutiques, tailoring units, and some export houses, and then we segregate the shreddings as per the color, the size, the material of the fabric, and then we make lifestyle items from those shreddings. So it depends on the quality, it depends on the fabric, the material of that fabric, and then we make different items from those shreddings, lifestyle items. Now there are many NGOs who are into sustainable gifting. I mean, if they have any event, they are more of buying anything which is sustainable. So mostly the consumer base is NGOs. The NGOs they buy these gifting items from us, and there are some parents also who want to give sustainable gifts on the birthday of their children. So we make a pouch or a gift hamper as per the budget, and it's a sustainable gift. So that's how we do it. So different items as per the size. छोटी पोटलीज हो गई, the fabric decorations है, fabric jewelry है, and the stuffed toys हैं, and then जो पूरा shredding बच जाता है जिसका और कोई यूज नहीं होता, बहुत ही minute छोटा छोटा shredding. Then we make dog beds and the mattresses for the stray animals, for the shelter. तो shelter homes के लिए फिर हम मैट्रेस बना देते हैं जो बहुत छोटे शेडिंग्स बच जाते हैं. So that goes for the shelter homes to take care of the wounded animals. And winters में जब dog beds चाहिए होते हैं बच्चों को, जो हमारे stray dogs हैं, so उनके लिए फिर हम dog beds बनाते हैं, and people जो उनको टेक केयर करते हैं stray animals को, they buy those dog beds. Very nominal price होता है, and then we make the bori beds. Usually हम उसको bori beds कहते हैं. So वो इतना बड़ा पोटेंशियल है. अभी तो मैं सिर्फ गुड़गांव के कुछ बुटीक्स को टारगेट किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी उनसे इतना ज्यादा वेस्ट आता है कि मैं उसको देख के जस्ट बॉगल्स माय माइंड कि कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है. इतना वेस्ट जनरेट हो रहा है कि आई हैव स्टार्टेड हेटिंग मेकिंग न्यू क्लोथ्स. यहाँ तक कि घर में भी मेरे अभी रिसेंटली पार्टी थी, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई नया कपड़ा बनाऊं, क्योंकि मुझे इमीडिएटली लग रहा था कि मेरा कपड़ा बनेगा, उससे शेडिंग करेगी, वो शेडिंग कहीं ना कहीं तो लैंडफिल में जाएगी. मतलब ठीक है मैं उठा रही हूँ, बट मैं कितना कर पाऊंगी अकेले. जनरेट होता है. आपने जैसे भी गुड़गांव की बात की, तो आई स्टिल नो लाइक दिल्ली में देयर आर फ्यू मार्केट्स, लाइक गांधी मार्केट है, सरोजनी नगर का मार्केट है. मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ, 200-300 रुपए में जीन्स एंड सूट्स आर अवेलेबल एंड पीपल आर जस्ट बाइंग जस्ट बिकॉज की रेट कम है. लोगों के पास आजकल मनी पावर है, सो 200, 300, 400, 500 तक की चीज तो लोगों को लगता है अरे इट्स ओके, बिग डील, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट. सो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कपड़ा महंगा होना इज मच बेटर, बिकॉज यू विल नॉट एंड अप बाइंग फालतू में. फास्ट फैशन की सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि वो चीप होता है. दैट्स व्हाई इट्स फास्ट फैशन.
ट्रू ट्रू सो ट्रू। कभी भी किसी भी सस्टेनेबल चीज को उस तरह से चीप नहीं होना चाहिए कि वो इजीली अवेलेबल है। एब्सोल्युटली। इजीली अवेलेबल तो नहीं होना चाहिए। सो ये बात वही है कि मुझे भी बहुत वो लगता है जब मैं कभी इंस्टा रील्स देखती हूँ, लोग बता रहे होते हैं इस जगह पे इतने रुपए कपड़ा मिलता है, इतने मीटर मिलता है। मैं भी सोचती हूँ कि यार आप लोगों ने इतनी आसानी से इनको इन्फ्लुएंस कर दिया, बट आपकी ड्यूटी ये भी तो बनती है कि आप साथ में एक एक जिसे कहते हैं कि आप डिस्क्लेमर लगाएं कि प्लीज फिर भी आप थॉटफुली कपड़ा खरीदें, माइंडफुली खरीदें, ट्रू क्योंकि यही कपड़ा हमारा जो है लैंडफिल में जाता है। क्या ये सबके लिए गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए? आई ट्रू। थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात में जरूर इंटरवीन करना चाहिए कि कोई भी इस तरह से इररिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। एंड सिर्फ लैंडफिल्स की बात नहीं है, हम ये भी रियलाइज नहीं करते हैं कि हर एक कपड़े को बनने के लिए पानी भी बहुत वेस्ट होता है, विच पीपल आर नॉट बहुत अवेयर ऑफ। उन्हें लगता है कि अच्छा पानी कपड़े में कहाँ से पानी आया। मैंने कहा यू डोंट नो द जर्नी, हाउ दैट कपड़ा, दैट जीन्स और द सूट और द साड़ी हैज कम टू यू। मैंने कहा डोंट रियलाइज दैट यू आर वेस्टिंग वाटर, लाने के बाद यू आर वेस्टिंग योर मनी, एंड देन फेंकने के बाद यू आर लाइक ब्रीदिंग स्पेस जो अर्थ की है उसको खत्म कर रहे हैं। अब आपने जैसे गुड़गांव के लैंडफिल की बात की, दिल्ली में देयर आर ऑलरेडी 4 लैंडफिल्स जो हैं, तो इस तरह से लैंडफिल्स बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज नो सोल्यूशन टू इट। मीथेन गैस एमिट हो रही है, डिसीजेस बढ़ रहे हैं, बट स्टिल पीपल आर बाइंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने जरूरी है, एक रूलिंग उसमें होनी जरूरी है कि ओके इतना ही लिया जाए या इतना। मुझे ये समझ में सच में समझ में नहीं आता कि लोकल जो गारमेंट मेकर्स हैं इतने कैसे अलाउ कर दिए जाते हैं कि ओके 200 300 रुपए में दे आर जस्ट कपड़ा ला रहे हैं इन एन नंबर ऑफ क्लोथ्स, पजामा, शर्ट्स, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। मतलब एमआरपी तो उनकी भी फिक्स होनी चाहिए कि भाई इतने से कम में नहीं बेचना है। ये मतलब कैसे टैकल करेंगे हम ऐसे प्रॉब्लम को? कैसे करेंगे अगर हम लोग माइंडफुल? सो बात वही है कि अगेन आप सिर्फ यही सोचते हो कि मैं अपना बिट कितना कर सकती हूँ, और एक्चुअली आप वैसी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं कि लोग आपको देख के एटलीस्ट ये रियलाइज करें, इट्स काइंड ऑफ लीडिंग विद एक्शन, है ना? राइट कि राइट। लीडिंग विद एक्शन है। आप ऐसी जिंदगी जिए कि अगर मैं कोई इवेंट बिना नया कपड़ा लिए आराम से निकाल सकती हूँ, और कोई मुझे आने से रोक नहीं रहा इवेंट में कि आप कैसे आगे पुराना कपड़ा पहन के, है ना? कि क्यों आ गए, कोई कोई बैन तो नहीं है ना, मतलब कि पुराना कपड़ा पहन के नहीं आ सकते। यू शुड नो द वेज, एक्चुअली यू शुड नो द वेज हाउ टू कैरी अ पुराना वाला कपड़ा आपने कितनी अच्छे तरीके से क्रिएटिवली करना। और वो मैं करती हूँ, बिकॉज बिल्कुल मेरे में क्रिएटिव साइड है, वो मैं करती हूँ। और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने 4-5 बार पहना, बिकॉज आई ऑलवेज मिक्स एंड मैच, कभी किसी के साथ कुछ। सो आई थिंक यहाँ पे एक जो फैशन डिजाइनर्स हैं या उन लोगों को, आई थिंक ये एक नया सेगमेंट ढूंढने की जरूरत है कि कैसे रीपर्पसिंग, री इन्वेंटिंग सिखाएं लोगों को कि किस कपड़े के साथ आप दोबारा से मैच कर। थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग नया कपड़ा दिखाने से, उसका फैशन दिखाने से बेटर है हम पुराने कपड़े को दिखाएं कि उसको हम कैसे फैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या जैसे आपने भी कहा ना क्रिएटिवली पहनना, तो आई एम श्योर सी हम सभी इतने सेंसिबल है कि अगर हम शादी ब्याह फंक्शन में जा रहे हैं तो वी विल बी वेल ड्रेस्ड, तो उसके लिए देर आर ऑफ ऐसे ऑप्शंस जो हमारी अलमारियों में अच्छे कपड़े ऑलवेज आर देयर जो हमने बहुत सालों से नहीं पहने होते। देयर कैन बी अ साड़ी, देयर कैन बी अ लहंगा, देयर कैन बी अ हेवी सूट। सो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अपना घर का पहन के जाएंगे, वी आर सेंसिबल इनफ, बट उसी सेंसिबिलिटी में हमें थोड़ी सी अपनी सोच को और लाने की जरूरत है। लाइक आपने कहा कि क्रिएटिवली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप, थोड़ा सा साड़ी कुर्ता किस तरह से आप उसको क्रिएटिवली पहन सकते हैं। तो वही है कि थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी अपनी समझ लगाने की जरूरत है, एंड वी कैन कॉज फाइन। एंड आपने बिल्कुल सही कहा, कोई आपको पार्टी में आने से मना नहीं कर देगा कि आपने पुराना कपड़ा क्यों पहना है। लोग क्या कहेंगे कि फैक्टर से ऊपर उठना होगा हमें। कोई बॉदर नहीं करता है। आप जब कुछ जिंदगी में अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आपको कोई कुछ नहीं कहता कि आपने क्या पहना हुआ है। लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लोग आपके काम के बारे में बात करते हैं। सो जस्ट मेक योर सोल बिगर। कपड़ा तो क्या है, वाई एक कपड़ा आपको डिफाइन करना चाहिए कि आपने वो कपड़ा पहना तो आप अच्छे लग रहे हो। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी कपड़ा पहनो आप ही अच्छे लगो बस, क्योंकि आपकी सोल अच्छी लगनी चाहिए। एक कपड़े में 200 रुपए के कपड़े की क्या ही कीमत है कि वो आपको वो बनाए कि आप उसमें अच्छे दिख रहे हैं। आप में इतनी वो होनी चाहिए, इतना ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए काम का कि आपको वो कुछ भी कपड़ा पहने कि लोगों को लगे कि ये तो क्रिएटिव ही है। चीजें मैं देखती हूँ, वीवर्स कितना वीव करते हैं, साड़ीज बनाते हैं, कितना टाइम लगाते हैं।
हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं करते उनके उनके हार्ड वर्क की, उनके वीव की, उनकी स्किल की, और जल्दी से चीजें लेते और फेंक देते हैं। किसी ने हाथों से बनाया है, नहीं हम लोग कैसे क्रूल हो सकते हैं? इट्स नॉट अबाउट बीइंग जजमेंटल, आई एम जस्ट सेइंग मे बी हम लोग मिलजुल के इकट्ठे कुछ इस तरह की पॉडकास्ट करते रहेंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचता रहेगा, तो कुछ लोग कुछ तो जर्नी अपनी शुरू कर ही लेंगे, एंड दे विल कम। एक स्टेप से शुरू करें, 2 से करें, 3 से करें, हमने भी ऐसे शुरू किया था। जरूर होगा। ट्रू ट्रू ट्रू। आपने जब अभी ये साड़ी की बात की ना, तो मुझे एक बहुत पहले का इंसिडेंट याद आता है। आई वाज इन जामनगर एंड वहां पर एक बहुत ही फेमस शॉप है सुतारियाज, तो मैं उनके पास सूट वगैरह लेने गई थी। सो उनके यहाँ कुछ 2-3 साड़ियां साइड में पड़ी थी, तो आई जस्ट आस्क्ड, रेगुलर कस्टमर थी, तो मैंने कहा ये कौन सी साड़ियां हैं? तो कहते मैडम ये साड़ी घर की है। तो उनके घर में उनकी मदर एंड 3 बहुएं, दे यूज्ड टू स्टे इन वन, क्या कहते हैं उसको, ननद वाज है। व्हाट दे डू कि वो साड़ी एक ही खरीदते हैं, सब लोग अलग अलग तरह से उसके ब्लाउज सिलवाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू पेयर एक्सचेंज करके। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, मैंने कहा वाह, मतलब एंड दे आर लाइक बिजनेस टाइकून्स, लेकिन स्टिल दे हैड दैट थॉट प्रोसेस कि अगर महंगी साड़ी है से 15,000 20,000, सो दे वर थॉटफुल कि घर की हर औरत अगर उस साड़ी को पहन सके, उसका तरीका कैसा है, आप ब्लाउजेस अच्छे अच्छे सिलवा लीजिए, साड़ी एक रहेगी। सो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी उनकी लॉन्ग बैक की। मैंने कहा सच थॉटफुल प्रोसेस, थॉटफुल एंड क्रिएटिव होने की बात है। एंड समीरा जी, जैसे आपने कहा कि वंडरफुल सोल, यू आर ट्रूली अ वेरी वंडरफुल सोल एंड यू हैव शेयर्ड सच ब्यूटीफुल थिंग एंड योर जर्नी विद अस कि ऑफ कोर्स आई एम श्योर काफी लोग, काफी लिसनर्स आज मेरे मोटिवेट हुए हैं। एंड गाइस, वंस अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी, समीरा जी का इंस्टाग्राम हैंडल है सस्टेनेबिलिटी कोच अंडरस्कोर समीरा। शी इज एसोसिएटेड एंड फाउंडर ऑफ क्रॉकरी बैंक फॉर एवरीवन, जिसका भी एक इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड शी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अस्तित्व ट्रस्ट, उसका भी इंस्टा हैंडल है अस्तित्व अंडरस्कोर ट्रस्ट। ये सारी लिंक्स मेरे पॉडकास्ट के राइटअप पे नीचे आपको मिलेंगी। यू कैन फाइंड समीरा जी ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर सब जगह आप समीरा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका वर्क देख सकते हैं एंड उनके एसोसिएशंस, उनके एक्टिविटीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। So Samira ji, it was really, really, really nice talking to you. Thanks for your time. Thank you so much. Thank you. It was wonderful talking. और लाइक माइंडेड लोग जब, और हमारे जैसे लोग जब एक तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं, मुझे लगता है the endless, the topic is endless, we can talk for hours, for days, you know. But let's do something for the next podcast maybe. Sure. And soon someday I would try to visit you and see you in person. You are really a very motivating soul. Most welcome. You will love this place. I can guarantee you, you will love this place. Total sustainable place, different section. वहाँ पे हम बायोएंजाइम करते हैं, वहाँ हम कंपोस्टिंग करते हैं, ई वेस्ट का कलेक्शन है, एंड देन हमारा फैब्रिक का कलेक्शन है, एंड देन यू विल लव दिस थिंग। एंड मेरा एक और है, मैं मोज़ैक आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं मोज़ैक भी ब्रोकन क्रॉकरी से बनाती हूँ। सो अगेन वेस्ट को वो करना है। सो मोज़ैक वर्कशॉप्स भी मेरी होती हैं, जिसमें कि लोग अपने घर से ब्रोकन क्रॉकरी कप्स हैं, प्लेट्स हैं, वो लेके आते हैं, एंड देन वी क्रिएट यू नो। अरे wow, you shared another beautiful information. Most welcome. एंड बच्चों के लिए भी वर्कशॉप होती है। I mean, मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब बातें, बिकॉज बच्चों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। When they see the volume of waste, इतना फैब्रिक वेस्ट निकलता है, अपने हाथ से जब वो सेग्रीगेट करते हैं, कहीं ना कहीं जब वो बड़े होते हैं, उनके दिमाग में वो बात रहती है कि इतना, जैसे हम लोगों के भी तो तभी दिमाग में जब हमने वेस्ट का वॉल्यूम देखा, राइट। तो हमारी वर्कशॉप जब होती है तो बच्चों को उसमें हम वेस्ट के बारे में बताते हैं, फिर उनको हम सेग्रीगेट करवाते हैं कपड़ा, देन उनकी चॉइस के कपड़े का पाउच बना के उनको खुद सिखाते हैं। सो जो सोइंग है वो एक तरह का लाइफ स्किल अगेन, कि आप नया मत खरीदो, पुराने को मेंड करना सीखो, है ना, बनाना सीखो पुराने कपड़े में से। सो दैट्स सस्टेनेबिलिटी। सो बच्चे इतना एंजॉय करते हैं इन वर्कशॉप्स को, एंड तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि बॉयज सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। नाइस। कॉन्ट्रेरी टू द जनरल बिलीफ कि गर्ल्स करती हैं, उनको एंजॉयमेंट होती है ये वाले काम में, बट मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है कि बॉयज एंजॉय अ लॉट। बहुत अच्छी बात है, वैसे दैट्स गुड, दैट्स
Good. So, लड़का हो या लड़की, guys, it's not about what you are doing. It's all about कि आप कितने aware हैं, कितने thoughtful हैं, कितने creatively चीजों को कर सकते हैं और कितना sustainability अपनी daily life में ला सकते हैं. So, guys, आज के लिए इतना ही. On a last quote before I end up that you cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and then you have to decide what kind of difference you want to make. And certainly Samira ji is a very great example of the difference which she has brought, and she has made people aware with her workshops, with her activities. I'll be sharing all the links related to Samira ji in the blog post also. And that's all for today, Samira ji. Thank you once again for your Thank you time so and much. sharing your journey. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to the listeners. Thank you. Thank you. So, Panchatattva Girl will be back with more kisse kahani, motivating, inspiring, and eco-friendly stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सस्टेनेबल रहिए, अपनी पाउच के अंदर रखी हुई चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए. कपड़े का बैग, एक कपड़े का रुमाल, एक स्टील स्ट्रॉ रखना इतना भारी नहीं होता है दोस्तों. So just switch to that and be more aware, more sustainable, and more creative. Thank you. Bye bye. Namaskar.